In first video about perception, we talked about process of perception, different factors that affect perception. Today we will be talking about the remaining part, that is the factors that affect selection of stimuli and organization of that stimuli. So there are different factors that affect the selection of stimuli, as we have already discussed that we are bombarded with different type of stimuli from our environment. We do not select or we do not process every type of stimuli that we receive. Some stimuli are noticed and others are screened out. कुछ stimuli ऐसे होते हैं जिनको हम receive करते हैं और बाकी को हम छोड़ देते हैं. जैसे अगर हम कोई मूवी देख रहे हों तो गर्ल्स जो रिसीव करेंगी स्टिमुलाई वो डिफरेंट होंगी जो बॉयज रिसीव करेंगे. लाइक जनरली गर्ल्स विल सिलेक्ट और दे विल नोटिस द ड्रेसेस worn by actress, and boys will notice obviously bike, action, cars, etc. So this is a way in which we select stimuli. Another example can be a nurse who is working in some post-operative care unit. She may ignore the smell of medicines or phenyl or something like that. But a person who came to visit patient, जो पेशेंट से मिलने आया है, जो पेशेंट को देखने आया है, वो इन सारी स्मेल को बहुत अच्छे से फील करेगा, बहुत अच्छे से नोटिस करेगा. वो डिपेंड करता है कि आपका अगेन किस टाइप की स्टिमुलाई है, आपका प्रोफेशन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स यू मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स. So let us discuss about different factors that influence selection of stimuli. There can be external factors or internal factors. External factors are generally present in the stimuli that a person is getting, and internal factors are related to a person. So external factors are nature of stimuli. Nature means what type of object it is. Visual है, ऑडिटरी है, क्या हम उसको सुन रहे हैं या देख रहे हैं. जनरली विजुअल जो स्टिमुलाइज हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं इन कंपैरिजन टू एनीथिंग दैट वी आर लिसनिंग. पिक्चर्स अट्रैक्ट मोर. So what is the nature of stimuli? अगर if we are listening to something auditory, if it is rhythmic, if it is in rhythm or if it is in rhymes, तो वो हमारा attention जल्दी attract करता है in comparison to something which is spoken in haphazard way or something which is spoken in a language which is not understood by the receiver. Then comes the location. Stimuli किस location पे placed था. Like something which is in direct level of our eye, वो attract करता है हमारा attention ज़्यादा in comparison to something which is kept at lower level or at higher level. जनरली हम लोगों ने स्टोर में नोटिस किया होगा ये चीज़ कि जो चीज़ें हमारे आई लेवल पर रखी होती हैं हम उनको जल्दी सिलेक्ट करते हैं, उनको जल्दी परचेज करते हैं in comparison to the objects or the things which are placed at higher level or at lower level. Next, that is about location, the location at which such stimuli are placed. Then comes color. Colors have different effects. जैसे अगर हम साइकोलॉजिकल इफेक्ट पढ़ें, अगर सोचें कलर्स का, तो रेड इज वेरी स्टिमुलेटिंग, वार्म, क्लोज और इस तरह का कुछ फीलिंग देता है. वाइट इज फॉर पीस, येलो इज हैविंग डिफरेंट एक्साइटिंग सॉर्ट ऑफ सम साइकोलॉजिकल इफेक्ट, ब्लू रेस्टफुल होता है, वॉयलेट एग्रेसिव होता है. इस तरह से अलग अलग कलर्स के अलग अलग इफेक्ट होते हैं. तो कौन सा कलर स्टिमुलाई में यूज किया गया है, दैट ऑल्सो अफेक्ट्स हाउ मच अटेंशन दैट थिंग इज कैरिंग और कैचिंग फ्रॉम अस. maybe in a mass of black or in a mass of white, someone who is wearing red or yellow will be noticed easily in comparison to others who are wearing same color. Next is size. Generally, larger the size, more the attraction captured by that stimuli. तो जहाँ पर कई सारी नॉर्मल चीज़ें प्लेस्ड हैं और उसमें कोई एक चीज़ ऐसी प्लेस्ड है जिसका साइज इन कंपैरिजन टू अदर्स ज़्यादा है, दैट विल अट्रैक्ट आवर अटेंशन. वी विल नोटिस दैट पर्सन और दैट थिंग very quickly in comparison to other things which are placed around that particular thing.
big machineries, big hoardings, person who is of very tall, like that. Then comes contrast. Contrast means opposite to surrounding. सबसे अलग से उभर के जो चीज़ दिखती हो, जैसे एक एग्जाम्पल, बैकग्राउंड, अगर पूरा बैकग्राउंड में वाइट चीज़ है तो ब्लैक उभर के दिखेगा, बैकग्राउंड में ब्लैक है तो वाइट उभर के दिखेगा, अलग से हमें नजर आएगा। तो उससे ये होता है कि इफ अदर थिंग्स आर हैविंग सेम थिंग, जैसे रेड कलर, अगर रेड कलर को हम पिंक के बीच में रखेंगे तो शायद उतना निकल के नहीं दिखेगा, उतना क्लियरली विजिबल नहीं होगा। लेकिन वही रेड कलर अगर वाइट के साथ होगा और ब्लैक के साथ होगा या किसी कुछ ऐसे ही कलर ब्लू के साथ होगा, सो इट द कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट इज देयर, सो इट विल बी अट्रैक्टेड मोर। एंड दैट इज व्हाई सेफ्टी साइंस आर जनरली इन येलो बैकग्राउंड और वाइट बैकग्राउंड, और उस पर रेड से या ब्लैक से, जनरली रेड से। You all must have seen that danger sign. That danger sign is with red, जिसका बैकग्राउंड ब्लैक या वाइट होता है. So contrast effect is kept to so that that thing will be observed clearly or easily. Next is movement. The principle of motion states that moving object receive more attention than object which is stationary. कोई चीज स्टेबल है, स्टेशनरी है, तो वो हमारा अटेंशन कम कैप्चर करेगा इन कंपैरिजन टू समथिंग विच इज इन मूविंग कंडीशन. लाइक advertisement capitalize on principle by creating signs which incorporate moving parts, walls which are having different sort of illumination, जिसमें lights move करती हैं, that attracts our attention then simply focused अगर एक light है उसके comparison में. Then comes repetition. The repetition principle says repeated external stimuli is more attention drawing than non-repetitive. If something is done repetitively, बार बार अगर वो चीज़ हमारे सामने से गुजर रही है, repetition हो रहा है, like advertisement at the time of some sports or some series or television that we see, तो उसमें अगर repeated ad दिखाया जाएगा तो वो हम ज़्यादा अच्छे से notice करेंगे in comparison to something which is not shown too frequently. जैसे अगर हम in Indian context if I talk about, हम जब भी सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हैं तो रिपीटेडली एक एडवर्टीजमेंट हमें ज़रूर दिखता है, वीको टर्मरिक और वीको के अलग अलग प्रोडक्ट्स, तो वो हम एसोसिएट करते हैं कि ओके मूवी मीन्स वीको, और वीको फिर इस तरह से हमारे दिमाग में रजिस्टर हो जाता है. समथिंग विच इज़ नोवल, समथिंग विच इज़ वेरी न्यू, और समथिंग विच इज़ वेरी फैमिलियर. These two are the contrasting things that attract attention. Either novel things in familiar situation or familiar thing in novel situation attract our attention. So these are the external factors that affect selection of stimuli, and the internal factors which perceiver are needs and desire, personality, experience, learning, age difference, interest and ambivalence. So when we talk about needs, it can be psychological needs or physical needs. Like if I am feeling thirsty, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, तो मैं नोटिस करूंगी कि पानी कहाँ पर है. That will attract my attention. Then food. लेकिन अगर मुझे भूख ज़्यादा लगी है तो पानी शायद मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं रह जाएगा. So these needs play significant role in perceptual selection. A thirsty person, as I said, डेजर्ट में हो तो वो पानी को ज़्यादा देखेगा. अगर हम जंगल में हैं और हमें डर लग रहा है, then we will search for road, any sign of road जहाँ से हम easily निकल सकें. Next is personality. People carry different personality. Personality की वजह से, like if I am adventure loving, if I am extrovert, then I will notice, I will select different things in comparison to a person who is introvert. Extrovert होगा तो उसको आसपास के लोग
नजर आएंगे वो उनमें से ढूंढ लेगा जो ज़्यादा बात कर सकता है, जिसके साथ वो शेयर कर सकता है. While at same place, introvert person will select a place where he can sit quietly. Then comes experience. With experience, whatever your previous experiences with such type of stimuli, that also affects selection of your stimuli. If your previous experiences are bad, then you will select bad things out of thing. अगर अच्छे हैं तो आप अच्छी चीजें उसमें से निकालोगे. Learning is related to mind. It is a cognitive factor that again influence expectancy. It creates expectancy in people, what the person will expect. Like if 4 words are placed like machine, McDonald's, Macbeth, or anything else, and in line if machinery is written in same line MAC, the person will read machinery, maybe. क्यों? क्योंकि उसने पीछे के 3 वर्ड्स मैकडोनाल्ड्स, मैकबेथ इस टाइप से पढ़े थे, तो वो एक लर्निंग हो गया जिसकी वजह से वो उसी तरह से नेक्स्ट को भी पढ़ेगा. नेक्स्ट फैक्टर इज एज डिफरेंस. एज डिफरेंस इज डिफरेंस इन एज. दे परसीव पीपल विद डिफरेंट, और लोगों में उन अलग अलग चीज़ों को वो नोटिस करेंगे. जैसे एक यंग मैनेजर हो सकता है कि उसके साथ जो ओल्ड एज पीपल हैं उनके वो उतना फास्ट काम नहीं कर पाते, वो उस चीज़ को नोटिस करे. वाइल एट सेम प्लेस एक मैनेजर जो थोड़ा ज़्यादा एज का है, वो उन ओल्ड वर्कर्स का धीरे काम करना परफेक्शन का सिंबल माने. सो सेम थिंग इज परसीव्ड इन अ डिफरेंट मैनर. या फिर और भी ऐसी चीज़ें जैसे ड्रेसेस, what type of dresses a person is wearing will attract different attention from different age group. Interest is next factor that unconsciously influence whatever the interest of perceiver is. Like if I'll go to visit some building, कोई historical monument देखने में गई हूँ और मेरे साथ एक आर्किटेक्ट पर्सन है जो क्या नोटिस करेगा, द आर्किटेक्चर ऑफ बिल्डिंग. अगर मेरे साथ कोई ऐसा पर्सन है जो म्यूरल आर्ट में या पेंटिंग में इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट रखता है, तो वो वहाँ पर पेंटिंग किस तरह से की गई है उन चीज़ों को ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा, वो स्टिमुलाइज ज़्यादा कैच करेगा. वाइल हिस्टोरियन है तो वो उसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस और हिस्ट्री से रिलेटेड फैक्ट्स उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे. तो सेम बिल्डिंग और उसमें से डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलाइज लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं. देन कम्स एम्बिवेलेंस. एम्बिवेलेंस is another factor that affects perceptual selection. Ambivalence is a condition when you have mixed feeling. Indecisive situation, जहाँ पर आप बिल्कुल डिसाइडिंग पोजीशन में नहीं हो, दिस और दैट. जैसे कोई पर्सन हमें अगर अच्छा लगता है तो हम इंडिसिसिव कंडीशन में होंगे कि उसकी बुराइयों को ज़्यादा देखें या उसकी अच्छाइयों को ज़्यादा देखें. या किसी एक व्यक्ति जो भूखा भी है और उसके साथ एक बीमार पर्सन भी है, तो वो बहुत डिफरेंट कंडीशन में होगा कि पहले मैं बीमार व्यक्ति के लिए दवाई लाऊं या अपनी खुद की भूख मिटाऊं. सो स्टिमुलाइज आर अट्रैक्टेड. इफ आई एम कंसर्न मोर अबाउट माई हंगर, तो मुझे शायद बीमार व्यक्ति की दवाई की उतनी फिक्र नहीं होगी. इफ दैट डिजायर इज मोर, अगर मेरे लिए बीमार व्यक्ति ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो मुझे दवाइयाँ ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी इन कंपैरिजन टू माय हंगर. सो दीज आर द डिफरेंट फैक्टर दैट अफेक्ट सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलाई. देन कम्स ऑर्गेनाइजेशन. वी ऑर्गेनाइज ऑल द स्टिमुलाइज in a proper manner so that we can give meaning to that, and this process is called Gestalt process. Gestalt process means organization of stimuli. When we organize different stimuli, they are based on certain principles like figure and ground, similarity, proximity or continuity. If we talk about figure and ground, we can take this example. We can see two pictures in this particular one picture. अगर हम
ब्लैक को बैकग्राउंड में रखकर वाइट को ज़्यादा फोकस करें तो हमें एरोज, some arrows are going upward and some arrows are going downward. So that will come in front of our eyes. If process is reversed, हम white को background में लेकर जाएं और black को सामने की तरफ लेकर आएं, then we will notice people who are walking or moving downstairs. So this is how we can keep things in figure and ground method. So whatever we select or whatever we organize is organized on the basis of figure and ground. Basic perceptual principle है, किसी भी फिगर को आप बैकग्राउंड और फोरग्राउंड में रखकर, जैसे अगर मुझे कोई व्यक्ति पसंद है तो मैं उसकी बुराइयों को बैकग्राउंड में रखकर उसकी अच्छाइयों को भी देख सकती हूँ, और मुझे अगर अगर मैं सिर्फ अच्छाइयाँ देखूंगी तो मैं उसको ज़्यादा पसंद करूँगी, लेकिन अगर मैं उसकी बुराइयों को फोरग्राउंड में लेके आ जाऊंगी तो हो सकता है मैं उसको पसंद न कर पाऊँ. दिस इज द मीनिंग ऑफ फिगर एंड ग्राउंड. देन perceptual grouping done on the basis of few principles like proximity, similarity, continuity, closure and connectedness. Proximity means how close the two figures are. दो चीजें आपस में कितने close हैं. Generally, closer the things. We will look at the next slide. इसमें हम देखें the lines which are closer to each other are placed together in comparison to the other line जो थोड़ा सा दूर है. सिमिलैरिटी हमें यहाँ पर क्लियर कॉलम्स नजर आ रहे होंगे, एक कॉलम ट्राइंगल, एक कॉलम सर्कल, फिर थर्ड कॉलम इज अ ट्राइंगल. वी आर नॉट विजुअलाइजिंग दिस थिंग इन रोज. क्यों? क्योंकि सिमिलैरिटी के बेसिस पे हमने उनको एक साथ रख दिया है. कंटिन्यूटी, दिस लाइन इज मूविंग though the line is finished at point, but we can visualize the line moving ahead. We are keeping the things in continuous manner. Connectedness, the two balls which are connected with line, उनको हम एक साथ देख रहे हैं in comparison to the two other balls which are not connected with each other. Then next comes closure. जहां क्लोज कर दिया है, दो एंड्स को जहां क्लोज कर दिया है, वी आर नॉट इमेजिनिंग अ फुल सर्कल ओवर देयर, लेकिन जहां पर ओपन छोड़ दिया गया है वहां पर हम पूरे सर्कल को इमेजिन कर रहे हैं. सो हाउ वी कैन यूज दिस इन ऑर्गेनाइजेशन. द पीपल हु आर प्लेस्ड, हु आर जनरली सीन टुगेदर, हु आर in proximity with each other most of the time are considered as they are together. The other similarity principle, the people who are having similar characteristics, they can be placed in a team. Continuity, things go on like that. There is nothing like which comes to an end. Continuity में क्या करते हैं हम? perceive करते हैं कि object continuous pattern में चलता जा रहा है. जैसे फोरकास्टिंग हम करते हैं बिजनेस में, तो वो क्या किस बेसिस पे करते हैं? पास्ट कितना सेल्स हुआ था या किसी और चीज का फोरकास्टिंग, तो हम पास्ट को देखकर उसके बेसिस पे आगे का फोरकास्टिंग करते हैं. ओके. देन क्लोजर, द थिंग्स विच आर क्लोज्ड, चीजों जिनको बंद कर दिया गया है, इफ दे आर नॉट लेफ्ट ओपन, उनको हम आगे इमेजिन नहीं करते, लेकिन जिनको क्लोज नहीं किया गया है उनको हम आगे डिस्कस भी करते हैं और इमेजिन करते हैं कि ये चीजें होंगी. देन परसेप्शन चेंजेस. आफ्टर this organization, we interpret thing, and interpretation is giving meaning. This meaning can be based on perceptual set, attribution, stereotyping, halo effect, etc. These are few perceptual error. One is perceptual defense. What is there in perceptual defense? The tendency for people to protect themselves against ideas, objects, situation that are threatening. If something is threatening, पहले से जो मेरे बिलीफ हैं, मैं उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखने की कोशिश करूँगी. लाइक हमें शुरू से अगर ये बोल दिया जाए कि इस ये पर्टिकुलर पर्सन लेजी है या ही इज़ नॉट हार्ड वर्किंग, तो हम उसके द्वारा किया गया काम को भी अज्यूम करेंगे कि नहीं नहीं ये तो बाई चांस इसने कर लिया है, एक्चुअली ही इज लेजी. व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू डिफेंड व्हाट आइडियाज, व्हाट बिलीव्स आई एम कैरिंग.
Then comes stereotyping. It is a tendency to assign attribute to someone solely on the basis of the category of people of which that person is a member. जिस ग्रुप का वो मेंबर है उस ग्रुप के हिसाब से हमने उसको एक एट्रीब्यूट असाइन कर दिया है। जैसे एक वुमेन, डॉक्टर्स, प्रोफेसर, आर्टिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव वर्कर, इन सबको इफ द पर्सन इज कीपिंग देयर कंपनी तो हम उनको उसी कैटेगरी का मान लेते हैं, ठीक है। या जैसे हम लोग बोलते हैं ना डॉक्टर हैं, या अमेरिकन्स आर लाइक दैट, हमने कुछ पीपल हु आर लिविंग इन अमेरिका दे आर लाइक दैट, हमने एक कैटेगरी उनको असाइन कर दी। या पीपल हु आर लिविंग इन साउथ अफ्रीका दे आर ऑफ दिस टाइप। हम हर किसी को एनालाइज नहीं कर रहे हैं, हमने स्टीरियोटाइप कर दिया कि इस जगह के लोग या इस ग्रुप के लोग इसी तरह के होंगे। देन कम्स हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट मीन्स किसी एक चीज के बेसिस पर हमने उसको पूरी तरह से इवेल्युएट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज कमिंग टू ऑफिस विद बेड और प्रॉपरली आयरन क्लोथ्स नहीं पहने हैं तो हम उसको कह देंगे वो लेजी है, या वो गंदगी में रहता है, या उसको साफ सफाई या उतना एंथुजियास्टिक नहीं है। केवल किस बेसिस पर? क्योंकि उसके बेयर्ड है या उसने किसी कुछ दिन अनआयर्न्ड क्लोथ्स पहने। हो सकता है अनआयर्न्ड क्लोथ्स उसने इसलिए पहने कि उसका आयरन खराब हो गया था, या उसका बेयर्ड इसलिए नहीं क्योंकि रख पाया क्योंकि वो किसी और काम में बिजी था, उसके घर में कोई मेंबर बीमार था जिसकी वजह से उसको शेव करने का टाइम नहीं मिला। लेकिन हमने क्या किया, केवल एक कैरेक्टरिस्टिक, केवल एक एट्रीब्यूट के बेसिस पर हमने उसकी पूरी पर्सनालिटी को या पूरा उस पर्सन को इवैल्यूएट कर लिया। देन कम्स प्रोजेक्शन। Whatever traits I am having, I will try to see those traits in others. दूसरे में भी मैं वही traits देखूंगी जो मेरे अंदर खुद के अंदर है। अगर मेरे मन में चोर है तो मुझे सब चोर दिखाई देंगे, बट इफ आई एम गुड एट हार्ट देन आई विल परसीव अदर्स एज दे आर गुड। द लास्ट इज एक्सपेक्टेंसी इफेक्ट। ये डिपेंड करता है कि हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। इफ आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग और मुझे वो रिजल्ट्स नहीं मिले तो मेरा परसेप्शन पर्सन के प्रति, ऑब्जेक्ट के प्रति चेंज हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट परसेप्शन। एट्रीब्यूशन थ्योरी इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और एट्रीब्यूशन थ्योरी का मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखा है। सो थैंक यू एंड लर्न प्रॉपरली।